Swami Vivekananda ji, I would like to commence this workshop on the life history of His Highness Swami Vivekananda ji by Ved Shastra Sampann Shri Pandit Pranab Shastri. As per the culture of Jaipuria, every auspicious occasion is commenced with the lamp lighting and followed by Saraswati Vandana. So, I would request Shri Pranab Shastri ji, Rahul ji, Anup ji, Manoj ji, and our director sir and Poonam ma'am to come over and light the lamp. Pranab ji is fully dedicated to the promotion of Vedanta, the Indian philosophy. Vedanta is the science of living that empowers. Today, he is here to speak on the life history of Swami Vivekananda on the occasion of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary year. Besides that, Pranab ji is a speaker, pravachanankar, kathakar and literate in holy scriptures like the Vedas, the Upanishads, the Purans, the Bhagavad Gita, Bhagavad, the Valmiki Ramayana, Shiv Puran, the Mahabharata, Devi, Bhagavad Puran, Ganesh Gita, Kapil Gita, Science of Soul, and Ashtavakra Gita, that is, a dialogue between Ashtavakra and Janak on the nature of soul, reality, and bondage. Pranab ji started progressively studying about literature at the tender age of 11 and now spent more than a decade in these spiritual studies. Pranab ji born in 1992 and studied Shukla Yajurved Samhita at Alandi Samadhi Place on the 13th century Sant Dhyaneshwar at Pune, Maharashtra, Karkan Vidhi at Pushkar, Rajasthan, Bhagavad Adhyayan at Vrindavan, UP, Darshan Shastra, that is Indian philosophy, at Rishikesh, Uttarakhand. Pranab ji has given pravachan on various topics like Karma Yoga, Navvidhi Bhakti, that is 9 important aspects of devotion, how to excel in studies for school children, Sant Sahitya, that is teachings of various sons, how to be successful in life, Kartavya Path for school children, that is students' duties and responsibilities. Finally, Pranab ji is also just a fascinating person and we are all in for a treat today and get blessed by him. We all are very fortunate today to have Pranab ji with us. Without further ado, I would request our director, Dr. Rajiv R. Thakur, to give away this floral welcome to Ved Shastra Sampann Shri Pranab Shastri. To Rahul ji,
राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे ज्ञानेश्वरं तमाचार्यं वन्दे बद्धाञ्जलिर्मुदा नमाम्यहं गणेशं पार्वतीनन्दनं शुभं विनाशयति विघ्नान्नो विद्यां यच्छ प्रयच्छति नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यो देवः सविता अस्माकं मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः प्रेरयेत् तस्य तदहरतः तद्वरेण्यमुपास्महे समर्थः शङ्कराचार्यः विवेकानन्द एव च एतेषां स्मरणान्नित्यम् आविर्भवति पौरुषं गोविन्ददेवगिरये नमः सदैव श्रेष्ठधीः सदा योगी तपस्विश्च संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः. All the students will chant Om with me. Om. शांति आज भाग्य का दिन है कि हमें महापुरुषों की जीवनी श्रवण का यह सुअवसर मिला है। आप सबको विदित होगा कि ये वर्ष स्वामी जी की 150वीं जयंती वर्ष स्वामी जी का संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण संघ और भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा स्वामी जी के जीवन पे अलग अलग दृष्टियों से प्रकाश डालना यह चालू है
और वह बहुत आवश्यक है। आज यह सौभाग्य हमें भी मिला है कि हम उनका श्रवण करें। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र पे प्रकाश डालने की जरूरत इसलिए भी लगती है क्योंकि स्वामी जी की जो लीडरशिप थी, MBA के 1000 मास्टर्स इकट्ठे करने पर भी एक स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता। सर्वेंट लीडरशिप की हम आज चर्चा करते हैं, आज हम उसका अध्ययन करते हैं, आज उसका चिंतन करते हैं, पर सर्वेंट लीडरशिप हो, उसके बाद किस प्रकार से संस्था हैंडल करनी है, किस प्रकार से नेशन को हैंडल करना है, किस प्रकार से पूरे रिलीजियस किंगडम पे अपना अधिकार जमाना है, स्वामी जी ने वो करके दिखाया। स्वामी जी केवल भारत के या बंगाल के इस प्रकार के एक विभूति नहीं थे, अपितु विश्व के विभूति थे। सबसे पहले देखने की यह आवश्यकता है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है, बिजनेस मैनेजमेंट हम सीखते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट की शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं, पर उन सब में न जाते हुए सबके मूल में जो लाइफ मैनेजमेंट है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट का जितना सूक्ष्म और बारीकाई से विचार भारतीय ऋषियों ने किया, उतना अन्य कहीं के भी दार्शनिकों ने, कहीं के भी फॉरेन के फिलोसोफर्स हो या और कहीं के भी चिंतक हो, दार्शनिक चिंतक हो, किन्होंने भी इतना सूक्ष्म विचार मानवीय जीवन का नहीं किया। ऋषियों ने किस प्रकार से बारीकाई से किया, यदि हमें देखना हो तो हमें निश्चित रूप से हमारे परंपरा के मूल में जाना पड़ेगा और लाइफ मैनेजमेंट हमारे ऋषियों ने कैसे रखी इसको हमें देखना पड़ेगा। अक्सर इस दृष्टि से प्रकाश नहीं डाला जाता कि हमारे ऋषियों ने भी लाइफ मैनेजमेंट रखी है। मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल कौन सा है? सेटिंग द गोल्स, am I right? हमारे ऋषियों ने सबसे पहले 4 लक्ष्य मानव जीवन के रखे, 4 गोल्स। उन 4 लक्ष्यों में सब कुछ आता है, कुछ छूटा नहीं। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इसको अलग क्रम से मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले काम, इच्छा है, विभिन्न इच्छा है। इच्छा जो उत्पन्न होती है उसके लिए काम शब्द में ये अत्यंत व्यापक शब्द है। जितनी भी हमारी डिजायर्स है, सारे डिजायर्स का अंतर्भाव काम इस शब्द में हो जाता है। काम का सीधा अर्थ है कामना, और उस कामना की पूर्ति करने के लिए जिस किसी भी सामग्री की आवश्यकता हो, वह सारी सामग्री अर्थ में गिनी जाती है। काम, अर्थ, ये 2 चीजें हो। इसके बाद हमें किस प्रकार से उसे मॉरली करना है, उस पद्धति को कहा गया धर्म। मनुष्य को यह भी लगता है कि जैसे यह लोक में मुझे सुख प्राप्त हुआ, इस लोक में मुझे प्राप्त है, मुझे परलोक में भी प्राप्त हो। मेरी जो डिजायर्स है, जो प्रयास करके भी, लौकिक प्रयास करके भी पूरी नहीं हो रही, उनको यदि मुझे पूरा करना है तो मुझे कोई अलौकिक उपाय चाहिए, उसका नाम है धर्म। ऑल द ड्यूटीज। धर्म का सीधा अर्थ है कर्तव्य। राज धर्म, प्रजा धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म। यहाँ धर्म शब्द का सीधा अर्थ है ड्यूटी। धर्म शब्द का रिलीजन अर्थ है बाद में हुआ है, हमारी परंपरा में मूलतः उसका अर्थ है ड्यूटी। तो धर्म शब्द का यह व्यापक अर्थ ड्यूटी इस प्रकार से। अर्थ और काम इन दोनों की प्राप्ति करने के लिए आपको ढंग से, बिल्कुल सही मार्ग से आपको अपनी ड्यूटी पे लगना पड़ेगा, और उसी का नाम है धर्म। और अंतिम में कितना भी कमाया, कितना भी जो है अर्न किया, और कितने भी हमने नेम और फेम हमारे जीवन में हम अर्जित किए, खूब ऐशो आराम से रहे, फिर भी यह देखा जाता है कि टॉप 10 में रहने वाले, वर्ल्ड के टॉप 10 में रहने वाले जो अमीर है, वो भी सुसाइड करते हैं या नहीं? क्या कमी है? जो चौथी चीज आत्म शांति की कमी है, उसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा है। इन 4 गोल्स में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में किसी भी प्रकार का
विचार हमारे ऋषियों ने छोड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का लक्ष्य मानवीय जीवन का हमारे ऋषियों ने छोड़ा नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति 16 स्तंभों पे खड़ी है। 4 पुरुषार्थ जिनका चिंतन हमने किया, उसके बाद 4 वर्ण, समाज को इकट्ठा काम करना है तो अलग अलग ड्यूटीज बांटनी पड़ती है, उसका काम 4 वर्णों ने किया। 4 आश्रम, किस प्रकार से हमारे लाइफ को डिवाइड करना है। पहले 25 वर्ष फॉर लर्निंग, विद्यार्जन के लिए, दूसरे 25 वर्ष धन अर्जन के लिए, तीसरे 25 वर्ष पुण्य अर्जित करने के लिए, और चौथे 25 वर्ष हमारी आत्म शांति प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमारे लाइफ का डिवाइडेशन किया। देखिए, आप जितना विचार करते जाएंगे, इतना सूक्ष्म विचार किसी भी दार्शनिक ने किसी भी प्रक्रिया में अभी तक नहीं रखा गया है। लाइफ का डिवाइडेशन किया, काम का डिवाइडेशन किया, उसके बाद डिजायर्स के लिए अलग अलग रूट रखे। तो 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 साधन मार्ग। आत्म शांति की प्राप्ति करनी है या किसी भी प्रकार की उच्च अवस्था यदि प्राप्त करनी है तो उसके लिए 4 साधन मार्ग बताए। कौन कौन से? कर्म, योग, भक्ति एंड ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी ने इस पे बहुत विस्तृत लिखान किया है, विस्तृत प्रवचन किए हैं। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, लाइक दिस। इन चारों विषयों पे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर मार्मिक चिंतन किया है, सुंदर मार्मिक एक्सप्लेनेशन किया है, सुंदर मार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, और बहुत विदेशों में भी और भारत में भी बहुत सूक्ष्म इसका निरीक्षण और परीक्षण करके लोगों के सामने रखा है। लोगों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती, इसलिए एक साधन मार्ग से उस अंतिम ध्येय तक पहुंचना हर एक के लिए संभव नहीं है। इतनी सुविधा ये केवल भारतीय ऋषियों ने दी, अन्यों को ये देना संभव नहीं हो पाया। ऋषियों ने 4 साधन मार्ग दिए, उसमें भी जो भक्ति है, भक्ति में विभिन्न आपको आपके देवताओं की चॉइस दी। इतना सूक्ष्म और इतना स्वतंत्र, और स्वतंत्रता इतनी किसी अन्य धर्म ने, किसी अन्य दार्शनिकों ने हमें प्रदान नहीं कर पाया। कहने का मकसद ये है, 16 स्तंभ हो गए, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 साधन मार्ग। इस प्रकार की इन 16 स्तंभों पे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति खड़ी है। अब हम विचार करते हैं कि इतना सूक्ष्म जो विवेचन है, इतना सूक्ष्म जो विचार हमारे ऋषियों ने रखा, उसमें उसको यदि आत्मसात करना हो तो केवल ग्रंथों को पढ़ के बात नहीं होती। केवल आप किताब पढ़ेंगे या केवल आप जानकारी हासिल करेंगे, इससे काम नहीं होता। इंग्लिश में शब्द है वेल रेड, अच्छा पढ़ा हुआ, और हमारे परंपरा में शब्द है बहुश्रुत, बढ़िया सुना हुआ, जिसने अधिक सुना है। केवल जानने मात्र से, केवल स्वयं के अध्ययन से अध्ययन पूर्ण हो सकता है, पर परिपूर्ण तो वो श्रवण से होता है। अधिकारी महापुरुषों से श्रवण करेंगे तभी वो परिपूर्ण हो सकता है। महापुरुषों के जीवन पे प्रकाश डालने के लिए, महापुरुषों के जीवन पे उनका चिंतन करने के लिए, उनका श्रवण करने की आवश्यकता क्या है, इसका जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में आती है कि हमारे सामने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने रोल मॉडल्स होने चाहिए। और यदि लाइफ का हाईएस्ट, द इन्फिनिट जॉय, जिसे हमारे दर्शन शास्त्र की भाषा में आनंद कहा गया, उसको यदि अचीव करना है तो विवेकानंद जी जैसे रोल मॉडल को सामने रखने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए हम महापुरुषों के चरित्र देखते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन का एक प्रसंग उद्धृत किया है। एक बार उनके आसपास नाटक होने वाला था। गांधी जी गए देखने के लिए, तो जब देखने के लिए गए तो वो नाटक था हरिश्चंद्र का। जब गांधी जी ने देखा तो इतने इंस्पायर हुए, उन्होंने निश्चय कर लिया हरिश्चंद्र का नाटक देख के कि मैं जीवन भर सत्य की राह पे चलूंगा। ये प्रेरणा गांधी जी को कहां से मिली?
आप जितना महापुरुषों के चरित्र का श्रवण करेंगे, जितना उनकी चर्चा करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना आपको अपने जीवन में महान बनने के लिए सुविधा होगी। गांधी जी ने यह भी एक बात कही है कि विवेकानंद जी का चरित्र और उनका साहित्य पढ़ के मेरी देशभक्ति 100 गुनी बढ़ गई। ये गांधी जी का वाक्य है। कहने का तात्पर्य क्या है कि महापुरुषों की जीवन चरित्रों को देखने की आवश्यकता इसलिए है। महापुरुषों के जीवन चरित्रों को यदि देखेंगे तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। एक तो भगवान का चरित्र होता है और एक महापुरुषों का चरित्र होता है। भगवान का चरित्र हमें आनंद देने के लिए होता है और महापुरुषों का चरित्र हमें प्रेरणा देने के लिए होता है। एक दृष्टि से इसे भी एक बहुत मार्मिक बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। जो लोग इतिहास बनाते हैं वो कभी इतिहास भुलाते नहीं। इतिहास बनाते मीन्स जो महान होते हैं, जिनके इतिहास लिखे जाते हैं, जो इतिहास में कायम हो जाते हैं। जो लोग इतिहास बनाते हैं वो कभी इतिहास भुलाते नहीं, और जो लोग इतिहास भुलाते हैं वो कभी इतिहास बनाते नहीं। ये भी एक इतिहास है। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र में प्रकाश डालने की आवश्यकता इसलिए है। हम विभिन्न प्रकार के महापुरुषों का चरित्र शायद हमारे पाठ्यक्रमों में भी पढ़ते होंगे, पर विवेकानंद जी के चरित्र की देखने की क्या आवश्यकता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया यू शुड नो विवेकानंद फर्स्ट। पूरे भारतीय परंपरा का साधन मार्ग का चित्रण, पूरे भारतीय परंपरा का धर्म मार्ग का चित्रण और पूरे भारतीय परंपरा की सारी मॉरल वैल्यूज किसी एक प्रतिमा में यदि देखनी है तो एक प्रतिमा है केवल स्वामी विवेकानंद। उनके जीवन चरित्रों में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति क्या है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। एक आदमी। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो वाक्य कहा है बहुत मार्मिक बात। इफ यू वांट टू नो इंडिया यू वांट टू नो यू शुड नो विवेकानंद फर्स्ट। इसलिए विवेकानंद जी के चरित्र को देखना बहुत नितांत आवश्यक है और ये उनके जन्म का 150वां वर्ष है, इसलिए भी हमें देखना बहुत औचित्यपूर्ण रहेगा। और यदि हम शांति से श्रवण करेंगे और पूरे मन से श्रवण करेंगे तो उनकी वाइब्रेशंस, उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया, उसका कुछ ना कुछ अंश प्रसाद रूप से हमें प्राप्त होता है। They bless us because they are seeing। इसलिए इन महापुरुषों का जितना चिंतन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में उतनी उन्नति होती जाएगी। एक सीक्रेट का भी सीक्रेट है और भी अलग अलग किताबें हैं। द थिंग यू मेडिटेट, जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आपको धुन लग जाती है, जिस प्रकार से आप विचार करते रहते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आप यदि किसी महापुरुष का यदि रोज चिंतन करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके साथियों को ये बात ध्यान में आने लगेगी कि उसका स्वभाव वैसा होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का यदि हम रोज चिंतन करेंगे तो उनका चिंतन करते करते उनके दैवी गुण भी हमारे जीवन में आ जाए, यह इस वर्कशॉप का मुख्य हेतु है, ये इस चिंतन का मुख्य हेतु। इसलिए यदि किसी भी महापुरुष का चिंतन करना है तो उसके उस महापुरुष के गुणों को पहले जानना होगा, और गुणों को जानना है तो उसके लिए उनके जीवन को जानना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमने सुना नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने उनका नाम सुना है। हमने उनकी, जब हम उनकी तस्वीर देखते हैं तो एकदम खिला हुआ चेहरा, प्रसन्न मुद्रा देख के अंतःकरण अत्यंत दिव्य भावों से भर जाता है। उनकी आप साधना देखिए, उनका चित्र देख के भी आज भी हम इंस्पायर होते हैं। आपको ये बात ध्यान देने लायक है कितना तपस्वी महात्मा वो होगा कि जिसका चित्र भी देखने से हम इतना इंस्पायर होते हैं, हम इतने प्रेरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को जिस पे अत्यंत प्रेम था वह हमारी भारत माता। हमें थोड़ा सा उस काल पे भी जाना पड़ेगा जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, क्योंकि महापुरुष की जब गणना की जाती है, उसके कार्यों का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसने कितने विपरीत काल में वो काम किया इसके अनुसार वह निर्धारित होता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जिस काल में हुआ उसका पूर्व इतिहास हमें जानना आवश्यक है। विश्व के इतिहास की बात करें तो ईस्वी सन पूर्व
ईस्वी सन पूर्व 1000 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति ये विश्व में व्याप्त है। इससे आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं उस एक एक बात को प्रमाण है, इतना ध्यान में रखिए। ईस्वी सन पूर्व, उसका विस्तार मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। ईस्वी सन पूर्व 1000 वर्ष भारतीय संस्कृति ही पूर्ण विश्व में व्याप्त थी। ये किससे सिद्ध होता है? एक अनुमान मैं आपको बताता हूं। विश्व के सारे खंडों में आपको भारतीय देवी देवताओं के, भारतीय संस्कृति के अवशेष आपको मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। आज भी ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न खंडों में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। कैसे मिलती है? अपनी संस्कृति वहां व्याप्त थी इसलिए मिलती है। जब अमेरिका का शोध हुआ तो वहां पे अमेरिकन्स नहीं थे, they were red Indians, they were red but they were Indians by culture, means हमारी संस्कृति उस समय भी वहां व्याप्त थी। उसके बाद अच्छा ये कैसे व्याप्त थी? हमारे ऋषियों का, हमारे विचारकों का, हमारे विद्वानों का, हमारे श्रेष्ठ पुरुषों का विश्व में सर्वत्र भ्रमण होता था। इसलिए ये भी बात बहुत चिंतनीय है। इसलिए होता था ज्ञान दान करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने के लिए, टू डू बिजनेस, नॉट टू रूल और नॉट टू ट्रबल और नॉट टू कन्वर्ट देम। ये भारत की विशेषता है। तो भारत के विचारकों का, भारत के महापुरुषों का सर्वत्र आना जाना होता था, इसलिए भारत की संस्कृति व्याप्त हो गई। उस प्रवास के कम होने के कारण धीरे धीरे यूरोप आदियों में, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान में आने के लिए, जिन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा उन्हें बात ध्यान में आएगी कि ये जो डार्विन की थ्योरी है और उसमें ये भी कहा गया है कि पहले जंगलों में मनुष्य रहते थे और पेड़ की खाल लपेटते थे, पशुओं का चमड़ा लपेटते थे। यह वास्तव में यूरोप का इतिहास है। जब भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने लगी तब इन लोगों ने उन पे शासन किया, क्योंकि ऐसा होता है उग्र लोग जो है तुरंत आक्रमण करके सज्जनों पे शासन करते हैं। सज्जन, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का कुछ न बिगाड़े, सज्जनता से शांति से जिंदगी जिए, तो भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप कितना ही शांति से जीवन जिए तो भी ट्रबल करने वाले हमें ट्रबल करते हैं। तो वैसे ही उन जंगलों में रहने वाले लोगों को लगा और धीरे धीरे उन्होंने पूरा पाश्चिमात्य जगत व्याप्त कर लिया और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति कम कम होती गई। अमेरिका में भी रेड इंडियंस थे और यदि आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि लाखों लोगों का कत्ल करके अमेरिका बसाई। तो इस प्रकार से यह पाश्चिमात्य इतिहास, फिर जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, फिर भौतिकवाद ये भी एक बात ज्यादा बढ़ने लगी। फिर उसके बाद उन लोगों को शासित करने के लिए, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन लोगों को संस्कारित करने के लिए, वो लोग उग्र थे, जंगली, तो उनको दया से पूरित करने के लिए यीशु क्रिस्त इन्होंने क्रिश्चियनिटी निर्माण की और क्रिश्चियनिटी की संस्कार बहा दिए। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसका एक नटखट पुत्र है बौद्ध धर्म और जिसकी दूर की प्रतिनिधि है क्रिश्चियन धर्म, प्रतिध्वनि है क्रिश्चियन धर्म, दूर की प्रतिध्वनि। इसलिए आपको यदि इस बात को जानना हो तो आपको द अननोन लाइफ ऑफ जीसस एक बार तो पढ़ना चाहिए। अननोन लाइफ ऑफ जीसस में यीशु के अज्ञात 13 साल है जिसका पता किसी को भी नहीं, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसी को भी नहीं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये सिद्ध की हुई बात है, ऐतिहासिक बात है। मैं आपको किताब का नाम ही बता रहा हूँ, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस। जीसस हिमालय में आए, भारतीय योगियों से सीखे,
और उसका अंश जाके उन्होंने बांटा। और वास्तव में जो क्रिश्चियनिटी जीसस ने दी वो वास्तव में बहुत पवित्र है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी उसका बहुत आदर करते थे अंत तक। स्वामी विवेकानंद जी के प्रवास में उनके पास 2 ही किताब रहती थी, एक भगवद गीता और एक बाइबल पे एक टीका थी। एक विचारक ने जो विचार रखे थे उस किताब को स्वामी जी अपने प्रवास में रखते थे। स्वामी जी को जीसस का बहुत प्रेम था, जैसे बुद्ध भिक्षुओं का प्रेम था, वैसे ही जीसस का भी उन्हें बहुत प्रेम था। उसमें फर्क क्या है जीसस में और उनके परवर्ती लोगों में, इसका हम चर्चा बाद में देखेंगे इस बात से। तो जीसस हिमालय से, भारत से दया इस गुण को लेके उन्होंने वहां क्रिश्चियनिटी स्थापित की और बहुत मात्रा में उन पे उनकी उग्रता भी नियंत्रण करने के लिए सफलता भी मिली। तत्पश्चात जो है जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, बाद में जो है इस्लाम की स्थापना वगैरह हुई और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे सीमित होते होते भारतवर्ष में ही, माने भारत देश में ही सीमित हो गई। अभी इस बात को देखना है कि भारतीय संस्कृति आक्रमण होने से पहले, किसी भी देश का आक्रमण होने से पहले अत्यंत समृद्ध थी। कितनी समृद्ध थी यदि आपको देखना है तो कभी कभी वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का वर्णन आपको देखना चाहिए। जिस प्रकार का वर्णन वहां हुआ है उस प्रकार की संस्कृति, उस प्रकार का विकसनशील देश आज तक कोई संस्कृति नहीं बना पाई है। यह आपको अध्ययन करने के बाद ध्यान में आए। तो इस प्रकार की दिव्य यहाँ पे संस्कृति थी, पूर्ण विकसनशील, और जहां पे समृद्धि होती है वहां पे डाकुओं की नजर जाती है। इसलिए भारत विकसनशील था, भारत समृद्ध था, इसलिए सारे उग्रों की, सारे विधर्मियों की, सारे दुष्टों की नजर भारत पे आई और तब से भारत पे आक्रमण शुरू हुआ और भारत की लूट प्रारंभ हुई। 1-2 दशक नहीं, 800 साल तक इस देश ने आक्रमण सहे, 800 साल तक सहे। और वो कितना यमनों का कितना भीषण आक्रमण था, इसको मैं आपको यदि एक वाक्य में समझाना हो तो आज जो स्थिति कश्मीर में है वह स्थिति इस देश ने 800 साल भोगी है। 800 साल। यह जो आक्रमण था यह केवल राजनीतिक आक्रमण था। उससे पूर्व हमारी संस्कृति, हमारा देश अत्यंत वैभव संपन्न था और चारित्र्य संपन्न था। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने बात कही, एतत् देश प्रस्तुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। जीवन कैसे जीना है यह यदि किसी को सीखना है तो उसको भारत में आना चाहिए, भारत के लोगों को उसे देखना चाहिए और फिर सीखना चाहिए कि जीवन किस प्रकार से है। इस प्रकार से हमारे संस्कृति का जो सांस्कृतिक मंदिर है अत्यंत विशाल और अत्यंत खुला, जिससे सब लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसीलिए हमारे विचारकों ने कहा है, सबके लिए खुला है मंदिर है ये हमारा, मतभेद को भुलाता मंदिर है ये हमारा। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, मतभेद को भुलाता मंदिर ये हमारा। सबके लिए खुला है
मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि भारत के विचारक किस चीज के लिए जाएगा, दो चीजों के लिए जाएगा। कौन सी? एक तो शिक्षा प्रदान करना और दूसरा कारण व्यापार के लिए जाना। इसके अलावा कभी भारतवासी दूसरे देशों में अन्य हेतुओं से नहीं गए। व्यापार और शिक्षा, इन दो चीजों के लिए। भारत के इतिहास में हमें प्रायः यह बताया जाता है, जो इतिहास हमें सिखाया जाता है, कि भारत में पूर्व, अंग्रेजों के आने से पूर्व शिक्षा थी या ना? टीच किया जाता है, सिखा क्या जाता है। एक तो ये राजकीय आक्रमण हुए, जिन्होंने हमारा वैभव लूटा। इसको भी कभी न कभी पढ़ना चाहिए। जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक ध्यान में नहीं आएगा कि कितना इस देश से धन लूटा गया। क्यों? क्योंकि गरीबों के घर डाका नहीं डाला जाता, जो अमीर होते हैं उनके यहाँ डाका डाला जाता है। तो भारत देश अमीर था, आज भी भारत देश अमीर है। भारत देश अमीर है इसलिए इन सारे लोगों की दृष्टि भारत की ओर मुड़ी, और इतना सब ले जाने के बाद भी आज हमारा देश इस कगार पे खड़ा है। यह राजनीतिक आक्रमण हुआ। राजनीतिक आक्रमण के पश्चात, राजनीतिक आक्रमण को लोगों को ये समझ में भी आते हैं, पर इसके पश्चात, इन 800 साल के आक्रमण के पश्चात फिर भारत के ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हुआ। किनका? मुगलों के पश्चात आक्रमण हुआ ब्रिटिशों का। हम सबको पता है, व्यापार करने के बहाने से ब्रिटिश लोग आए, हाथ में तराजू लेके, और कब तलवार लेके खड़े हुए, इसका इतना चालाकी से उन्होंने काम किया कि भोला भारतीय समझ नहीं पाया। और उन्होंने सबसे पहले बंगाल जीता, और उसके पश्चात उन्होंने अपनी मुहिम चालू कर दी। तो मैक्स मुलर, जिन्होंने वेद का भाषांतर किया, वेदों का भाषांतर किया, आप सबको पता है, उसने एक बात कही। ये जो बात मैं कह रहा हूं, इसके पत्र आज ब्रिटिश सरकार के द्वारा छपे हुए उपलब्ध है। क्या है वो? मैक्स मुलर ने कहा कि इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, बट द नेक्स्ट कन्वेंट शुड बी बाय एजुकेशन। भारत को एक बार जीत लिया गया है, और हम सब प्रदेशों को धीरे धीरे जीत रहे हैं, पर अभी भारत के ऊपर दूसरी जीत यदि करनी है तो वो शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से करेंगे तभी हम इस खंडप्राय विशाल देश पे शासन कर पाएंगे। और इसलिए उनकी शिक्षा पद्धति लाना निश्चित हुआ। भारत में इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति किसने लाई? पता है नाम? नाम पता है? प्रसिद्ध है, हाँ, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति बनाई और उसने भारत में भेजी। उसका भी ये जो वाक्य है यह भी प्रसिद्ध है, छपा हुआ है। यदि मेरी शिक्षा पद्धति 30 साल यदि इस देश में चली, केवल 30 साल यदि इस देश में चली, तो इस देश का आदमी चमड़ी से और खून से भले ही वो भारतीय हो, पर मन और बुद्धि से वह निश्चित अंग्रेज हो जाए। यह बात रिकॉर्ड्स में अभी भी आपको उपलब्ध हो सकती है। यह बात लॉर्ड मैकॉले ने कही, और उस प्रकार की शिक्षा पद्धति उन्होंने चालू की। अभी देखना यह है कि उनको सफलता किस प्रकार से मिली। ब्रिटिशों का इस बात में तो उनकी तोड़ नहीं कि उन्होंने जिस बात की प्लानिंग करी उसको उन्होंने पूरी तरह से ढंग से कर दिया है। भारतीय संस्कृति का पतन कराना है, पूरे प्रयास से उन्होंने करने का निर्धार किया, और वही हुआ। देखने में हमारे ये आता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति चालू की। मैकॉले ने एक और बात कही कि मेरी शिक्षा पद्धति से वहां के भारतीय स्थानिक लोगों को कभी नहीं लगेगा कि हमारा इतिहास गौरवशाली था। हम विशेष
अस्मिता संपन्न थे, हम बहुत महान परंपरा के वाहिक है, ये उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब भूल जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? अपनी संस्कृति गलत है, हमारी संस्कृति की जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत है और इधर उधर से कहीं से तो भी जोड़ के बनाई गई है, इस प्रकार से उनकी बुद्धि हो जाएगी कि लॉर्ड मैकॉले ने स्वयं कहा। उसके तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी उसके भाषण उपलब्ध है। तो इस दृष्टि से उन्होंने भारत में शिक्षा पद्धति लाई। ब्रिटिशों का इस देश पे राज करना ये केवल हेतु नहीं था। आप यूरोप की इतिहास को देखेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आएगी, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट लोगों को करना है, लोगों को नहीं, देशों को कन्वर्ट करना है। और यदि कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए स्थानिक लोगों का बुद्धि भेद, स्थानिक लोगों के बुद्धि में अपने धर्म के प्रति प्रेम जागृत किए बिना ये बात नहीं होती। और शिक्षा से जितनी ये बात शीघ्र होती है उससे कोई दूसरा शीघ्र माध्यम नहीं है। इसलिए उनको भारत को क्रिश्चियन बनाना था, इसलिए शिक्षा पद्धति लाई और शासन भी किया। तो उनकी शिक्षा पद्धति आने के पश्चात भारत का जो युवा था उसको ये लगने लगा कि हमारा धर्म तो केवल रूढ़िवादी है और जो कुछ भी अच्छा है वह फॉरेन से है, वो पश्चिम से है, वो यूरोप से है, इंग्लैंड अमेरिका। तो उसको क्रिश्चियन धर्म स्वाभाविक प्रिय होने लगा। क्यों? क्योंकि धर्म की विशालता, कुछ गलत रूढ़ियां, विशाल कर्मकांड इत्यादि इसके कारण है। तो इस कारण से उन्हें वो धर्म जो है क्रिश्चियन धर्म अधिक प्रिय लगने लगा। और इस प्रकार से प्रिय लगने के पश्चात भारतीय सुधारकों की भी कुछ भारतीय सुधारक उत्पन्न हुए। बंगाल तो ब्रिटिशों की पहली राजधानी थी। राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना करी। अपने धर्म में कुछ सुधारना आदि उनके बुद्धि के अनुसार उन्होंने डाल के ब्रह्म समाज की स्थापना करी। और जो ईसाई मिशनरीज आए थे, क्रिश्चियन पादरीज आए थे इंग्लैंड से, तो उन्हें इस बात का खूब आनंद था कि हमें जो काम करना है वह काम ब्राह्मण समाज कर रहा है। शुरू में वो जो नास्तिकता उत्पन्न करने की बात थी उसका बेस अंग्रेजों के लिए ब्राह्मण समाज ने अच्छा किया। सुधारकों का युग आया। और स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत मार्मिक वाक्य है, इसको यदि ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में आएगा कि विचारक, संत, प्रचारक और सुधारक इनमें अंतर क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य था कि आज के सुधारकों को सारे धर्मों का मूलगामी ज्ञान नहीं। सारे धर्मों का मूल क्या है यहाँ तक वो पहुंचते नहीं। एक बात। दूसरी बात स्वामी जी ने कही, उन्होंने किसी भी धर्म की पूर्ण साधना नहीं, इसलिए यह प्रचारक सफल नहीं हो पाते। हो भी जाते तो कुछ मात्रा में होते, पूर्ण मात्रा में नहीं होते। दो बातें, एक तो सारे धर्मों के मूल का ज्ञान करना और दूसरी बात साधना करना। आज आप ये टैली करेंगे आज के सोशल वर्कर्स के साथ तो आपको ये बात ध्यान में आएगी कि कितने धर्म के मूल की स्टडी करते हैं। अच्छा, कुछ करते भी होंगे। तो जो अगली बात स्वामी जी ने कही बहुत मार्मिक बात है। स्वामी जी ने कहा है कि साधना उनकी नहीं होती। कितने सोशल वर्कर साधना करते हैं, देखा है आपने? सोशल वर्कर्स कुछ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ये आपको दिखाई दिया है क्या? हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही और तब से लेके आज तक यही बात हुई है कि एक तो सारे धर्मों का मूल जानने का प्रयास नहीं हुआ, एक, और दूसरी बात कि उन्होंने साधना नहीं, जो साधन संपन्न होता है और जो पूर्ण अध्ययन संपन्न होता है उससे यह गलत कृत्य नहीं होते। और स्वामी जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव के प्रसाद से यह बात मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि धर्म के मूल को जानना और उसके साथ साथ साधना करना, इन दोनों बातों को ही मैंने आत्मसात किया है। यह बात स्वामी विवेकानंद जी के वचनों में आपको मिलेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, विश्वास करना है तो साक्षात्कार संपन्न ऋषियों का करो, विश्वास करना है तो भगवत दर्शन प्राप्त संतों का करो,
तो सुधारकों का कितना करना है, इस बात पे हमें विवेक होना चाहिए। होता है कि प्रसिद्धि के झोंके में जो ज्यादा आता है उसकी ओर युवाओं का आकर्षण अधिक बढ़ता है और उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। पर स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक दृष्टि दी कि जो अध्ययन संपन्न है और जो साधन संपन्न है उनका अनुगमन हमें करना चाहिए। तो बंगाल में जिस भूमि में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ उसमें ब्राह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने स्थापित किया और उसके पश्चात उनके अनुयायियों ने भी उसको केशव चंद्र सेन आदियों ने और देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। तो इसमें अनेक सुधारणाओं की बात थी। फिर उसी से प्रार्थना समाज भी निकला और भी कुछ चीजें निकली। इससे होता क्या था, अपने धर्म में जो है वह सब बुरा और जो पाश्चात्य देशों से आया है वह सब बढ़िया। कुछ उन्होंने अपनी बातें भी मान्य की है पर उसमें उन्होंने बहुत अंतर किया है और इस प्रकार के सुधारकों का एक जमाना आरंभ हुआ। सुधारकों के इस जमाने में बहुत भीषण आघात हमारे धर्म को हुआ। लॉर्ड मैकॉले ने, जिसकी हमने अभी चर्चा की, विदेशी शिक्षण पद्धति कौन से सन में लाई पता है? 1836 में। तो उस समय उन्होंने अपनी विदेशी शिक्षण पद्धति लागू की। विदेशी शिक्षण पद्धति लागू की और उसमें उन्हें यश मिलके भारतीय संस्कृति की गरिमा भारतीय लोगों के बुद्धि से निकल जाए, इसमें उन्हें खूब यश मिला। समाज सुधारकों का जो है खूब उत्थान हुआ और उससे अंग्रेजों की मंशा सफल होने लगी। अब हम जब विचार करते हैं, स्वामी जी कहते थे कि किसी भी बात के मूल में जाके उसका संशोधन होना चाहिए। हम विचार करते हैं कि ये आक्रमण, मुगलों के राजकीय आक्रमण और पश्चात अंग्रेजों के सांस्कृतिक आक्रमण, ये क्यों हुए? इसके मूलतः 3 कारण हैं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो खूब इसमें रस आएगा। भगवान बुद्ध के पश्चात 200 साल बाद, भारत में जो उनके नाम पे जो साहित्य लिखा गया उनके नाम पे, वह इस प्रकार का था कि सर्वम दुःखम दुःखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। यह संसार पूरा दुखमय है। यदि इस संसार के दुख से भी छुटकारा पाना है तो जीवन से पलायन करो। यह उसका सार मैं बता रहा हूँ। उनकी भाषा अलग हो सकती है, मतितार्थ एक है। इस कारण से हुआ ये कि भारत का समाज संन्यास प्रिय होने लगा, कर्म योग पे उसका ध्यान नहीं रहा और इस कारण से आने वाले आक्रमणों को वो पचा नहीं पाया। दूसरी बात, बुद्ध धर्म को उस समय राजाश्रय मिला। इस कारण अनेक राजा भी अहिंसा की बात में आके हमारे ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमणों को उत्तर नहीं दे पाए ठीक से। इस कारण से भी भारत पराभूत हुआ। और दूसरी बात कि निराशाजनक विचार, राजाओं का पराभव, इस कारण से और इनकी ऐसे विचारों की छाया हमारे संतों के साहित्य पर भी पड़ी। इस कारण से लोगों की मानसिकता पलायनवादी हुई। पलायनवादी विचार यह मूल भारतीय विचार नहीं है। वेदों में कहा गया जीवाम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, अजितहास श्याम शरदशतम, अदीनाश श्याम शरदशतम। हम दीर्घ काल तक जिए, हम दीर्घ काल तक सुख से जिए, हम दीर्घ काल तक किसी के सामने बिना झुके जिए। ये भारत के वेदों ने बताया। भारत का विचार, भारत का वैदिक विचार वह रसीला विचार है, वो निराशाजनक विचार नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने धर्म की व्याख्या करते समय बहुत मार्मिक बात बताई है। यतः अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सधर्म। 2 बातें धर्म की व्याख्या में। इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात पकड़ में आएगी कि इस प्रकार की व्याख्या शायद ही आपने सुनी होगी। भारतीय ऋषियों ने कहा कि अभ्युदय और निश्रेयस, इन दोनों को जो प्रदान करे उसे धर्म कहते हैं। अब ये अभ्युदय और निश्रेयस क्या है? अभ्युदय का सीधा अर्थ है मानवीय विकास, जीवन का विकास। अभ्युदय का सीधा अर्थ है विकास।
और निश्रेयस का अर्थ है आत्म शांति। भारतीय वैदिक विचार पहले विकास की बात करता है और फिर आत्म शांति की बात करता है। पहले अभ्युदय, मैं आपको वैशेषिक दर्शन का सूत्र बता रहा हूँ। यतः अभ्युदय निश्रेय ससिद्धिश्च धर्मः। पहले अभ्युदय और फिर निश्रेयस, पहले विकास और फिर आत्म शांति, इन दोनों बातों का सम्मेलन करके भारतीय वैदिक विचार है। और इस कारण से भारतीय वैदिक विचार मूलतः पलायनवादी नहीं है, मूलतः रसीला विचार है। और इस प्रकार के कुछ संतों के भी साहित्य में इस प्रकार की छाया निराशाजनक पड़ने के कारण भारतीय समाज की मानसिकता, भारतीय राजाओं की मानसिकता प्रतिगामी हो गई और उससे विदेशी आक्रमण वो बचा नहीं पाए और इस समृद्धशाली देश को पराभव का मुख देखना पड़ा और इससे भी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ। अब देखना यह है कि राजकीय आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण, ब्रिटिश तो सफल रहे। सुधारकों ने जिस प्रकार से अपनी सुधारणाओं का प्रारंभ किया, हिंदू धर्म के मीन्स अपने परंपरा के भारतीय धर्म के विचारों को दूषण साबित करके उन्होंने नए विचार लाने का प्रयास किया। अभी इसमें ध्यान देने लायक ये बात है कि उन्होंने यह बात हमारे सामने जो रखी, इसमें हमें यह बात ध्यान में देनी है कि इन सब आक्रमणों के बावजूद भी हमारी संस्कृति पूरी नष्ट नहीं हो पाई। अंग्रेजों के आने के पश्चात उनका जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ, उस सांस्कृतिक आक्रमण में बहुत हमारे धर्म को क्षति तो पहुंची, पर 800 साल का यवनों का इतना भीषण आक्रमण होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति का वैभव तो, हमारे देश का वैभव तो कम हुआ, पर सांस्कृतिक नुकसान नहीं हुआ। इसलिए अब यदि आपको रोमन कल्चर देखना है, रोमन संस्कृति देखनी है, तो आपको आगे उसके कुछ पत्थरों को उसके पुराने ग्रंथों में देखनी पड़ती है, तब आपको पता चलता है कि रोमन संस्कृति थी, पर इतना भीषण लगभग 1000 साल के आक्रमण के पश्चात भी जो संस्कृति टिकी रही, उसका महत्व कितना ज्यादा होगा और उसके सब मूल कितने, उसके जड़ कितने पक्के होंगे, इसको ध्यान में देना चाहिए। हमें ब्रिटिशों ने आने के पश्चात यह बात सिखाई कि भारत में शिक्षा नहीं थी, भारत को आगे हमने सिखाया। गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तब उन्हें ये कहा गया कि आप तो गवार थे, आपका देश पूरा गवार था, आपको आके हमने सिखाया। तो गांधी जी का वहां पर एक भाषण है, गांधी जी ने कहा देयर वाज अ ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड यू डिस्ट्रॉयड इट। गांधी जी ने जब ये बात कही तो उनके अनुयायी प्रोफेसर धर्मपाल, आप में से नाम भी उनका सुना होगा किसी ने, तो प्रोफेसर धर्मपाल ने देयर वाज अ ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस वाक्य को पकड़ के, इस वाक्य का विचार करके, इस पे अपार संशोधन, खूब मेहनत करके संशोधन किया और एक किताब लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री, यही उसका नाम है। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में किस प्रकार से शिक्षा थी, भारत में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी, हर जाति के अध्यापक वहां होते थे और भारत के कौन से प्रदेश में कितने स्कूल्स है और कितने यूनिवर्सिटीज है, इसका उन्होंने सिद्ध पूरे ऐतिहासिक प्रमाण के सहित आपको सिद्ध करके दिया है। और उसके लिए उन्होंने आंकड़े कहां से दिए? उन्होंने आंकड़े दे दिए ब्रिटिश गैजेट के अनुसार। जब ब्रिटिशर्स रूल करने से पहले भारत का निरीक्षण करने के लिए भारत में आए थे और भारत का निरीक्षण करके फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने परखा है कि भारत कैसा है। उन्होंने अपने सांसदों के सामने, अपने राजा के सामने बात रखी कि भारत किस प्रकार का देश है, क्योंकि उस पे यदि राज करना है तो उसका परीक्षण करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने जो गैजेट के आंकड़े रखे उसी को प्रमाणभूत प्रोफेसर धर्मपाल ने दिया है। और आपको एक बार वो किताब पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ने के बाद ध्यान में आएगा कि कितना हमसे झूठ बोला गया। और बात ऐसी है, एक झूठ यदि 1000 बार बोला गया तो वो झूठ भी सत्य प्रतीत होता है। इसलिए कभी ये किताबें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से हमारे यहाँ शिक्षा थी। अभी जो हमारे यहाँ जो लोह स्तंभ है, अभी तक उसे गंज नहीं हुआ। उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत में हाईएस्ट स्टील उत्पन्न करने की
टेक्नोलॉजी थी, पर जो है हमारे यहाँ लिखा पढ़ी ये बात नहीं होती थी। किसी के पास आप पूछो कि आपके पास प्रमाण पत्र है क्या, प्रमाण पत्र नहीं होता था। जिनका चरित्र हम देखने जा रहे हैं, उन विवेकानंद जी के पास भी शिकागो पहुंचने के बाद प्रमाण पत्र नहीं था। भारत की परंपरा ये है, वो प्रमाण पत्रों पे नहीं, वो स्वयं प्रमाण पे विश्वास करती है। भारत की इस परंपरा में आपकी मूल योग्यता क्या है, इस पे ज्यादा जोर दिया गया। और किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं होते थे, इसका लाभ अंग्रेजों ने लिया और अशिक्षित घोषित कर दिया, अशिक्षित घोषित कर दिया। और इस प्रकार से हमारे भारत में शिक्षा पद्धति आने के पश्चात भारत के सुधारकों को भी ये लगने लगा कि भारत वास्तव में ऐसा ही है, भारत वास्तव में पिछड़ा था। पर एक बात ध्यान देने की है कि इतने दीर्घ काल, लगभग 1000 साल के आक्रमण के पश्चात भी यह संस्कृति नष्ट नहीं हो पाई। यह कितना दिव्य प्रवाह है, इसमें हमारी संस्कृति के मूल कितने, हमारी संस्कृति के जड़ कितने पक्के थे, इस बात का दर्शन इसमें होता है। इसीलिए कहा गया, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता